यस, तो मनोज जी ने कल एक बहुत अच्छा वीडियो भेजा और बोला कि आप सबको दिखाना, ये मात्रा जी का वीडियो है। हम एक बार उसको देखते हैं और हम उस पर अपनी फिर रियलाइजेशन और लर्निंग शेयर कर सकते हैं, राइट? एंड whenever I see these kind of videos, of course we are not seeing it from the point of view कि मैं सेवक हूँ, मेरे को स्टूडेंट कैसे संभालने हैं। आई लुक इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और जस्ट एक घर ऑर्गेनाइज करती हूँ, तो उसमें मैं कैसे इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, कैसे इस काम को इस्तेमाल कर सकती हूँ। अगर मैं घर में कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करती हूँ तो कैसे करूँ। अगर मैं ऑफिस में कोई इवेंट रखती हूँ तो मैं उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। बिकॉज सेवक स्टूडेंट का मतलब है अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना। मैं कितनी ऑर्गेनाइज्ड और अकाउंटेबल हूं अपनी हर एक्शन के लिए, वो मुझे भी तो रिफ्लेक्ट करना है ना सेवक स्टूडेंट के थ्रू। एंड वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज प्लीज अपने आधे घंटे में से ना 5 मिनट आप सेवक स्टूडेंट ऐप पे लगाया करो। इट्स अ ब्यूटिफुल ऐप। कल मैंने फिर उसे किसी और चीज के लिए खोला था, मैं कोई वीडियो ढूंढ रही थी उसमें। मनोज जी ने बोला था कि सेवक स्टूडेंट ऐप में है। मैंने उसमें देखा कि उसमें डोनेशन का भी अगर आपको किसी को भेजना हो ना, तो उसमें बहुत अच्छा से एक लिंक दिया हुआ है दैट यू कैन सेंड द लिंक फॉर दैट। मुझे किसी को, सम पर्सन इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो वो मुझे बोल रही है कपिला एफर्मेशन भेजो। या तो मैं मनोज जी के यूट्यूब में से प्लेलिस्ट ढूंढूंगी, नहीं तो स्टूडेंट ऐप में टॉपिक वाइज एफर्मेशंस है। आप सीधा लिंक भेजो ना उसको। ये लास्ट में मैं गई थी लिया साइकिल गिफ्ट, कुछ आई डोंट नो, शेयर लिंक्स पे डोनेशन डिटेल्स है, डीवाइल गिफ्टिंग है और लिया एसएमएस गिफ्ट भी है, जिसकी वो साइकिल पूरी होती है। तो प्लीज आप इसको जरूर यूज किया करो। डू वी ऑल हैव सेवक स्टूडेंट ऐप? बहुत अच्छी ऐप है, बहुत मेहनत से बनाई है, तो आप उसको जरूर यूज किया करें अपने स्टूडेंट्स के लिए। सो आई जस्ट शेयर द वीडियो जो मनोज जी ने भेजा है। Good people will not work for any organization where Mahathir, my question is, as a management team, we feel we should have a hands-on on the controls of the organization and what are the activities. Is it the right way? without self accountability, including all of us, none of us perform to our maximum capabilities. Self accountability is the only way that the best comes out. But unfortunately, self accountability is not an inherent trait in people. So we have to replace it with external accountability. Because self accountability is not there, we have to become accountable to somebody. The moment you feel, what is the challenge for most of you? You are not accountable to anybody. You can live your life on your own relative terms. Nobody is going to question you anymore. And you will realize that most of you sitting here, because you are not accountable to anybody else, somewhere there is a slackening sometimes here. The pace that you used to have, that momentum that you used to have comes down because you're not accountable to anybody. If this at your level is that when situation makes you accountable, or a cash flow situation creates that sense of accountability, or the rising of competition forces some level of accountability to you, the best in you comes out. When that does not happen, there is a slackening that happens. For somebody at the nth level of an organization, unless we create a sense of performing culture, a sense of accountability, some sort of a metrics by which they can keep measuring where they are falling short of the thing, peak productivity in an organization is not possible, especially when organization starts growing in the sort of numbers in which your organization is growing. It's not personally possible for you to monitor the excellence at all levels. We need systems to drive the entire thing. Research reveals that the moment you are directly, the number of direct reportees to you is more than 11, the efficiency of your leadership starts dropping. It's for that reason that almost all the team sport is a team of 11 or less than this, because psychologists have done research and found out that any one of you who have more than 11 people directly reporting to you, you're not getting the best out of anybody in your team. That's the maximum size that you can get the best out of.
So unless I create an organization where there are systems by which people can monitor their own productivity and know when they fall short, and I create that level of hierarchical pyramid of leadership where each one in turn is responsible for the efficiency and productivity of not more than 11 people. If I don't achieve this, slackening off the process, effort, striving towards excellence will be there. Then you cannot create an organization of peak productivity, which is absolutely important. Having said this, if I start getting into micromanaging people, good people will not work for any organization where either there is authoritative leadership, I am saying it so you should do it, or micromanagement is happening where every small thing you're interfering and saying this is not how you should do, this is not how you should do. The sense of self-respect in an individual gets lost. The pride that you carry about this entire thing is you neither see yourself as part of authoritative leadership nor micromanagement. There is empowering leadership where what is expected of you is very clearly communicated. Anything less than those results is not acceptable, is clearly communicated. Now you are asked to devise the process and the plan by which you will achieve this. So somewhere there is a sense of respect that I'm part of a leadership which has told me what is to be achieved and has left it to me to find out ways by which I will achieve. But when I say left it to you, this still needs a level of reporting. So what is your plan of action? It's not that I want you to achieve 22 crores, this is your target, how you achieve it is your this thing, because not everybody has the right plan. So empowering leadership is telling you, so now that you have to do 22 crores, how are you going to do it? Create a plan of action and come back. So मात्रा जी जो इसमें बता रहे हैं, let's relate specifically to this meeting. मेरा वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है when this thing is on, right? So he's saying कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन टर्म्स में बता रहे हैं कि 11 से ज्यादा लोग अगर आपको रिपोर्ट करते हैं तो दैट मीन्स आपकी लीडरशिप स्पॉइल हो जाएगी, बिकॉज इतने लोगों से आप रिपोर्टिंग ले ही नहीं पाओगे. सो यू हैव टू क्रिएट अ हिरार्की ऑफ पीपल जहाँ पे लोग एक दूसरे को रिपोर्ट करते हैं. सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इज द बेस्ट अकाउंटेबिलिटी जो जनरली ह्यूमंस में होती ही नहीं है, कि मैं खुद के लिए जवाबदेही है कि मेरे से ये काम क्यों नहीं हुआ, मैं यहाँ तक क्यों नहीं पहुंचा, मैंने ये क्यों नहीं अचीव किया, आज ये सोचा था ये पूरा क्यों नहीं किया. अब मैंने आज इतने किलोमीटर की वॉक सोची थी, मैंने नहीं की. आज मैंने अकाउंट्स की जो ट्रांजैक्शंस टैली करनी थी आज 100 करनी थी, मेरे से सिर्फ 50 क्यों हुई है. या आज मैंने इस पर्सन को फोन करके ये सारी चीजें सॉर्ट आउट करनी थी, मैंने क्यों नहीं करी है. क्यों? इफ आई एम फाइंडिंग थिंग्स इन मी टू इम्प्रोवाइज, then I am self-accountable. If I'm finding fault in others, then I'm passing the buck. So what he's saying is कि आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिसमें आप you are responsible for something, self accountability is best, पर होती नहीं है तो external accountability लगानी पड़ती है, checks and systems लगाने पड़ते हैं कि yes you are doing what you are supposed to do. और मेरे हिसाब से हमारा सबसे बड़ा check system लिया मैसेज होता है. मैं उसमें लिख रही हूँ ना, मैंने TY to TYL किया कि नहीं किया, मैंने फिलिंग पीपल्स बकेट किया कि नहीं किया, मैंने कैथारसिस किया कि नहीं किया, मैंने अवेयरनेस बैंड किया कि नहीं किया, मैंने PRS की कि नहीं की. तो व्हाट एम आई डूइंग? दिस इज अ वेरी गुड टूल ऑफ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी. अब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी वीक ना पड़ जाए उसके लिए सेवक क्रिएट किए गए हैं कि आप स्टूडेंट्स की सेल्फ अकाउंटेबिलिटी चेक करो, वेदर दे आर अकाउंटिंग टू देमसेल्व्स और नॉट. स्टूडेंट क्या बोलेगा? शादी में गया था, बड़ा बिजी था, मेरा प्रोग्राम. मानसी बोलेगी, अब मानसी है नहीं इस ग्रुप में, मानसी बोलेगी मेरा TSC का बैच शुरू हो रहा है कपिल, आई एम वेरी बिजी, मैं नहीं कर सकती. विशाल जी बोलेंगे ओह मेरे यहाँ पे somebody passed away in his family कुछ दिन, मैं बहुत बिजी था, मैं नहीं कर पाया. So see again I am passing the buck because self accountability doesn't come naturally to people. राइट. उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि जब आप किसी को कोई चीज की अथॉरिटी दे देते हो कि दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लिया, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट. लेकिन उस पर भी एक लेवल ऑफ सुपरविजन बहुत जरूरी है. माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब आपने बोला था ना आपको लिया करना है, आपने क्यों नहीं किया, आपको करना चाहिए था, अब आप नहीं कर रहे हो, जाओ यहाँ से. हम तो वो नहीं कर रहे हैं ना, हम उनको बोल रहे हैं आप चाहते हो कोई आपको लिया के लिए फॉलो करे,
आप चाहते हो कोई सेवक तो बताओ। फिर वो जब बोलते हैं कि हाँ हमें चाहिए और हम कमिट कर रहे हैं, तो सेवक उनको दिया जाता है। फिर अगर लिया कि इनकंसिस्टेंसी है, तो उसके लिए भी हम उनको पर्टिकुलर रिमाइंडर्स दे रहे हैं, सॉफ्ट रिमाइंडर्स हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, व्हाट्सएप पे रिमाइंडर्स दे रहे हैं, कभी मिल जाते हैं जॉय शॉप में तो उनको बोल देते हैं आप लिया में रहो। एंड देन इवेंचुअली आफ्टर सो मेनी डेज वी आर आस्किंग देम कि सॉरी, यू नीड टू बी रिमूव्ड। सो इतना सुपर, अगर मैं वो आधा घंटा रोज नहीं दूं, मैंने बोल दिया मेरे यहाँ पे 12 लोग हैं और सब लिया भेज रहे हैं, ठीक है ना, ये मैंने उन्होंने कमिट किया था कि मैं लिया भेजूंगी, तो लिया भेज रहे हैं, मैं क्यों देखूं? नो, दैट्स व्हाट माइत्रा इज सेइंग कि एक लेवल ऑफ सुपरविजन बहुत जरूरी है, बट बिकॉज द पर्सन माइट नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। उनको शायद ये प्लान ही नहीं समझ में आ रहा कि मेरे को क्यों बोला जा रहा है लिया के लिए, या मेरा क्या फॉर्मेट करेक्शन है, या कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मुझे नहीं पता ये। तो उनको हम वो आधा घंटा स्पेंड करके अपना फीडबैक देते हैं, दिस कैन बी इम्प्रोवाइज्ड, आप इसको यहाँ पर ये डाल सकते हो, आप इस तरह से फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, आप इस जगह पे अपनी वीडियो लर्निंग जरूर ऐड करो। सो दैट्स व्हाट इज टॉकिंग अबाउट कि एक तो ये हमारे लिए भी बात कर रहे हैं एज अ सेवक, and as a sevak to students, how we can be accountable to ourselves without passing the buck, and then keep a supervision on ourselves कि जो हमारे फॉर्मेट्स हैं वो बिल्कुल अप टू डेट है, हमने जो टाइम दिया उस पे हम लोग टिके हुए हैं, या हम जो फॉलो अप हमने आधा घंटा कमिट किया हम दे रहे हैं। और यही चीज माइक्रो मैनेजमेंट ना करते हुए एक लाइटर सुपरविजन हम बाकी सबके लिया पे भी रख रहे हैं। I'm not trying to micromanage by telling you that's not the process I want you to go. At the same time, I'm not giving you an authoritative leadership saying that this is how I want you to achieve 22 crores, but I'm asking you how do you want to achieve this, and I'm asking you to report this back to me. Listening to the entire plan of action with my maturity, or because my direction of intelligence is different from yours, I'm saying I see some of the lacuna in your entire planning because these are things you overlooked, and if this takes a hit, in fact, the way I see it, I'm not seeing more than 14 crores because these are the issues. So go and think about it, come up. So finally, we have reached a stage where there is a synergistic view. We feel this process will lead us to 22 crores. Now we agree upon, we are meeting once a week, once a fortnight, once a month, once a quarter, depending on what level of leadership you want to exercise, saying that come back and see where have we reached, not end of the year whether you've done 22 crores or not. You wait for end of the year, you tell me whether you would have done 22. No, you won't, because we are not self-accountable people, we are externally accountable people. So when I see you once a month and see, if you had to reach 22 crores, right now you should have already reached 1.8 crores. Where are we? There can be a setback, but as long as you understand why there is a setback and you have a plan of action, how you're going to make up in the next month for the entire thing, I'm okay with that. So this is called empowering leadership. Authoritative leadership is, I will chalk out the entire plan and you go through blind following of the whole thing. Workers will work for you. You have what? About 150 chartered accountants working for you. No, they won't. Micromanagement is that lot of infinities do that with me. Mahatria, whenever you are free on Wednesday evening after 7 o'clock, I want to meet you. Whenever you are free. Whenever you are free, I want to meet you, I can understand. Mahatria, whenever you are free between 11 o'clock and 12 o'clock on Saturday morning, because I am coming that side, can I see you? Okay. Nobody likes to be micromanaged. If you can develop empowering leadership, you're still having you need a sense of control. Otherwise, Peter Drucker put it so beautifully. Without supervision, there are only 3 things that grows in an organization: inefficiency, politics, and attrition. Only 3 things will grow in an organization. So there has to be that supervision, but it has to be empowering leadership and not micromanagement or authoritative leadership. What is your realization? You all can share in the chat box, या आप unmute करके बोल सकते हैं. मेरा वीडियो भी थोड़ी देर में शुरू होगा. Yes. वो जरूरी नहीं है कि इसको एकदम माइन्यूट लेवल में जाके चेक करना, उनका कंसिस्टेंसी कितना है देखना, और कभी को अच्छा किया तो अप्रिशिएट करो, और
और इतना मैंने जाना। राइट, ठीक है। और कोई? सरोजमा, धीरज जी, आशा जी, किशोर जी, वंदना जी, रोहित जी, राजेश जी, लीलावती जी, कोई भी, किसी को जो भी लर्निंग लगा है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। इसमें यह है कि लाइक लीडरशिप में एक फर्स्ट जो उन्होंने बोला कि आपका लेवल ऑफ जो भी लीडरशिप है उसमें कम्युनिकेशन होना चाहिए, चाहे वो आप मतलब वीकली बेसिस करें या मंथली 15 डेज में करो, लेकिन वो कम्युनिकेशन होना चाहिए उस हिसाब से जो आपको रिजल्ट पाना है उसमें। यस, कम्युनिकेशन मतलब हमें भी सेवक के स्टूडेंट्स के साथ टच में रहना चाहिए, राइट? एनीथिंग एल्स, एनी अदर लर्निंग? ये कपिला जी, मतलब बेसिक था कि रिपोर्टिंग होना चाहिए, तो रिपोर्टिंग होगा तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती है। एब्सोल्युटली, जैसे हम लिया में रिपोर्टिंग ही तो कर रहे हैं, और आप आधा घंटा स्पेंड करके उस रिपोर्टिंग पे सुपरवाइज कर रहे हैं। हम लोग उसमें से कोई गलतियां नहीं निकाल रहे उन लोगों की, लेकिन उन्हें बता रहे हैं वेयर यू कैन इम्प्रोवाइज। सुपरविजन इज रिक्वायर्ड, राइट? सुपरविजन हम सबका वही आधे घंटे का है जो हमें डेडिकेट करने के लिए हमने कमिट किया है। यस, एनीबडी एल्स? एंड चीज उन्होंने बताया कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पसंद नहीं होती किसी में, और इनबिल्ट नहीं होती है, वो डेवलप करनी होती है स्टेप बाय स्टेप। तभी तो लोग भागते हैं लिया से भाग जाते हैं। और मुझे अभी लीव करना पड़ेगा, 7:30 को मनोज जी ने मुझे TSC ज्वाइन करने बोले हैं। ठीक है, ठीक Even है। me also, but better to please explain that appreciation के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं और एक चीज और भी बताती हूँ ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एनीबडी एल्स? रोहित जी, आपको कुछ शेयर करना है? Yeah, I just wanted to update. I have 4 students. One is Kavita ji, who's doing it on and off. So whenever she misses, I remind her, and then the next day the PS. And the other student is Ghansham Bhavsar ji. He was regular before. Now he has become a bit irregular. And, that is what I wanted to update. I have reminded him. So he replied he will start again. And from the Mahatraji's video, I learned that supervision with empowering leadership works in an organization, not micromanaging. Right. Thank you. Thank you. Yes, nobody likes micromanagement. अभी this is what I have learned from my husband also. Like हमारे पास around 12 से ऊपर HODs हैं कंपनी में। उसमें क्या होता है, some of them of course do faults. हमने उनको जो टारगेट दिए अचीव नहीं किए, असेंबली वालों ने नहीं किए, टेस्टिंग वालों ने आज बोला था 2 मशीनें टेस्ट होने, उन्होंने 1 मशीन को टेस्ट किया, कुछ पार्ट 100 की क्वांटिटी में बनने थे लेकिन 70 बने। सो ही ऑलवेज सेज, कपिला, मेक देम से दैट कि उनका काम पूरा नहीं है। यू डोंट टेल देम कि उनका काम पूरा नहीं है। जहां पर आप अपना माइक्रो मैनेजमेंट करने लगोगे, जैसे आपके यहाँ पर भी कितने लोग आपके अंडर काम करते हैं ना, लेट्स से मेरी हाउस हेल्प ही है, अगर मुझे पता आज उसने काम ठीक से नहीं किया, आई जस्ट टेल हर जस्ट टेक अ राउंड ऑफ द हाउस एंड सी इज एवरीथिंग ओके। वो बोलेगी एक बारी में हाँ ठीक है, उसको बोलो कि नहीं आप एक बार और देख के आओ, मेरे रूम के कॉर्नर वगैरह सब हैं। लेट हर फाइंड आउट, क्योंकि जब मैं उसकी आंखें उस तरीके से घुमा एक्टिवेट करूंगी ना कि यस यू हैव टू सी दैट दिस क्लीनिंग नीड्स टू बी डन, सेम वे अगर प्रोडक्शन का टारगेट मिस हो रहा है, उस पर्सन को पता होना चाहिए कि यस इट हैज बीन मिस्ड एंड दीज आर द फ्लॉज एंड दिस इज माय प्लान फॉर द। धीरज ऑलवेज सेज कि मीटिंग्स में जो पर्सन अपर लेवल पे होता है उसको कम बोलना चाहिए। यू स्पीक, बिकॉज व्हेन यू स्पीक यू रियलाइज वेयर डिड यू मिस। अगर मुझे मानसी से या विशाल मेथी से बात करनी हो, आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग, मैं बोलूंगी आप बताओ वेयर इज द थिंग मिसिंग। वो अगर जिस दिन रियलाइज कर लेंगे ना, तो वो तो लिया वैसे भी कंसिस्टेंटली भेजेंगे। अभी तक क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज मैं बोल रही हूँ। पर धीरे धीरे होना यही चाहिए हम सब। आई थिंक दिस इज माई लर्निंग ऑल्सो फ्रॉम योर, कि आगे से हमें ये नहीं बताना कि आप लिया भेजो, शायद मैं ये लिख के भेजूंगी आई हैव सेंड माई लिया एट दिस टाइम, I am consistent. Something like this, we can change the way of sharing with them rather than making them feel you are at mistake. Let them realize their mistake, क्योंकि वो realization सबसे ज्यादा important होती है।
वो डीपर हो जाती है और उसमें करेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड यस, माइक्रो मैनेजमेंट से सेल्फ रिस्पेक्ट जाती है। अगर हम हर चीज पर टोका टाकी करेंगे, घर पर भी किसी पे करेंगे, वो भाग जाएगा ना। अगर मैं टोका टाकी हर चीज पे करूंगी, अगेन वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट सेवर्क स्टूडेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट अदर एरियाज ऑल्सो, राइट, कि ये ऐसे करना चाहिए, ऐसे। जैसे बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना, जो बहुत एज हो जाती है, तो कई बार, मोस्ट ऑफ देम, नॉट एवरीवन, श्यामला माँ जैसे लोग नहीं होते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, इसको ऐसे क्यों नहीं किया, तुमको बोला था ना इसको यहाँ पर रखना है, यहाँ नहीं रखना है। देन दे फील लाइक कि मेरा कोई पावर ही नहीं है। सो ही राइटली सेड कि एम्पावरिंग लीडर्स बनाओ, और एम्पावरिंग लीडर्स वो ही होते हैं जिनको आप मौका देते हो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का। अगर आप ही उनकी गलती बता के आप ही सोल्यूशन दे रहे हो, then you are not empowering them. You are just telling them, I know more than you. I am intelligent than you. This is what I have learned from Dheeraj also. He says, Kapila, don't open your mouth. Let them, आप बस उनको टारगेट मिस हुए ये दिखा दो, एंड लेट देम स्पीक कि वो टारगेट क्यों मिस हुए, और नेक्स्ट टाइम हम किस चीज का ध्यान रखेंगे, और आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है। अब उस प्लान ऑफ एक्शन को आप सुपरवाइज करो, but don't give them the solution and never tell them that आपने गलती करी है। Let them find out their mistake, क्योंकि एक बार उनके फिर वो हिंदी में बोलते हैं ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, तो फिर they'll be able to find their own mistakes, right? Sorry, मेरा वीडियो अभी भी ऑन नहीं हो रहा है। Zoom Baba is not so good, in a good mood today. Anybody else wants to update about सेवक स्टूडेंट या वीडियो के बारे में कुछ रियलाइज करवाना है, or anything you want to share? कपिला दी, हाँ जी जी। हाँ, बहुत सुंदर आपने समझाया, और वो सेवक के साथ आपने लिंक करके हर एक चीज बताई, और उसमें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। ऐसे लगा बहुत सुंदर आपने समझाया। कपिला जी, हाँ ये जी। वीडियो से जस्ट मतलब मुझे अपना पर्सनल वैसे रियलाइज हुआ कि जैसे अभी हम अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं वगैरह, तो जैसे अपने इन लॉज वगैरह मतलब मदर इन लॉ रहते हैं, तो वो जैसे आपने बोला ना, हर चीज में अगर पीछे बढ़ते हैं तो अपना इंटरेस्ट कम हो जाता है, करना चाहे तो भी। यस यस तो यस। खाली भाई हमको बोल के छोड़ दे ये आपको करना है, आप कैसे करो वो आप डिसाइड करो, लेकिन आपका खाली एक्शन बता दो तो वो करने की इच्छा होती है, और हम और दिन से करेंगे। बट पता है क्या होता है, जो लोग माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आई कांट कॉल देम रॉन्ग, बट दे आर अनअवेयर कि आप दूसरे की रिस्पेक्ट खत्म कर रहे हो। आप एक या वो अनअवेयर है, बिकॉज मनोज जी बोलते हैं ना, एवरीबडी इज अ प्रोग्राम मशीन। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि आप दूसरे पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर रहे हो। हमने भी किया होगा कभी ना कभी ऐसा, ऐसा नहीं, मुझे लगता है मैंने भी शायद ऑफिस में किया होगा कि मैं अपना बता देती हूँ, ऐसे 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 हो जाना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, दूसरे से पूछना, दूसरे को समझाना इज अ प्रोसेस। आपको टाइम तो लगेगा ना, आपकी पेशेंस तो चेक होगी ना उसमें, और आपको सुपरवाइज भी करना पड़ेगा, और आपको डाउट भी आएगा कि उसका एक्शन सही होगा कि नहीं होगा। तो कई बार इस प्रोसेस को बाईपास करने के चक्कर में वी ट्राई टू से कि ऐसे करो और ऐसे मत करो, लेकिन देयर वी नीड टू कैच आवर पैटर्न। माई वे और हाईवे की अगर आदत हो गई, तो फिर मैं इसको हर जगह स्पिल ओवर करूंगी कि मेरे ही तरीके, एंड देन वही 3 चीजें होंगी जो बताया गया है ऑर्गेनाइजेशन में। एट्रिएशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना, इनएफिशिएंसी एंड पॉलिटिक्स। बिकॉज सोल्यूशन तो मैं दे रही हूँ, तो उनका माइंड तो चल ही नहीं रहा, तो माइंड कहाँ चलेगा, गॉसिप में चलेगा, बैठे बैठे गप मारने में चलेगा, या फिर छोड़ दो ऑर्गेनाइजेशन, सीखने को तो कुछ मिल नहीं रहा, मैडम और सर जो बताते हैं हमें तो वही करना होता है बस। सी द डिफरेंस। क्योंकि जब तक किसी का दिमाग आप चर्न आउट नहीं करोगे, वो दही नहीं निकालोगे उसमें से, मक्खन नहीं निकालोगे, तब तक उसे लगेगा आई एम नॉट दैट मच अ कॉन्ट्रीब्यूटर इन द प्लेस। तो उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए। वो तभी बढ़ता है व्हेन ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोल्यूशन ऑफ हिज ओन प्रॉब्लम। मैंने टारगेट दिया, आपको अचीव करना है, आप अपना प्लान ऑफ एक्शन बताओ। इस प्लान ऑफ एक्शन में मेरे ये सजेशंस हैं, इम्प्लीमेंट डोंट इम्प्लीमेंट योर चॉइस, आगे बढ़ो। एंड अब मैं उस प्लान ऑफ एक्शन को डेली बेसिस पे सुपरवाइज करती हूँ।
आई फील कपिला जी की पेशेंस भी चाहिए उतना। हाँ, मैंने बोला ना, अब मैं अपना प्लान बताऊंगी, मैं आधे घंटे में बता दूंगी, वो अपना प्लान 2 घंटे में बताएगा, फिर मेरे से सुपरवाइज कराएगा, फिर उसको करेक्ट करवाएगा, फिर उसमें आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है उसमें। लेकिन ये रास्ता मुझे एम्पावरिंग लीडर्स, क्योंकि आज जब वो अपना प्लान ऑफ एक्शन बता रहा है, अगले 3 महीने में हो सकता है वो मुझसे बेटर प्लान ऑफ एक्शन बताएगा, बिकॉज ग्राउंड लेवल पे तो वही काम कर रहा है ना। ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन, जो जो वो काम को पूरा करते हैं, वो तो उसी की है ना। वो उसको अपनी फैमिली की तरह मान के चलेगा या नहीं चलेगा, या उनकी प्रॉब्लम्स को समझेगा, या कंपनी को उसी हिसाब से गाइड करेगा, तो वो ज्यादा बता सकता है। आई एम नॉट सिटिंग विद दो 60 एम्प्लॉयज, ही इज सिटिंग विद दो 60 एम्प्लॉयज ऑल द टाइम। उनके साथ डिस्कस करता है, प्लान बनाता है। तो सोचो किसका प्लान प्रूफ हो ज्यादा फुल प्रूफ होगा, द पर्सन हु इज विद द पीपल और द पर्सन हु इज सिटिंग इन द ऑफिस। सक्सेस के चांसेस तो वही होंगे ना जो उनके पास है। शुरू शुरू में लगेगा कि बहुत टाइम लग रहा है, पर धीरे धीरे आई एम क्रिएटिंग लीडर्स। और एक अच्छा लीडर वही होता है जो लीडर्स क्रिएट करता है। अदरवाइज हमारे जैसे जो प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं सरोजमा, वहां पर एचओडीज नहीं होते हैं। धीरज हैज कम फ्रॉम एमएनसी कंपनी कल्चर, तो उनको बहुत था कि हमारे यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। सो उसका अब मुझे समझ आता है व्हाई ही वांटेड एचओडीज, कि क्यों होने चाहिए। नहीं तो स्टूडेंट्स तो सारे लिया पहले भी भेज रहे थे, सेवक की क्या जरूरत थी। बस अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी चीज के लिए अकाउंटेबल नहीं हो तो उसके ना करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लिया आपके लिए सबसे बड़ी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, और हम उसको सिर्फ सुपरवाइज करते हैं। यस। ठीक है जी। हाँ जी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड शाम को मिलते हैं एक बार, ठीक है सरोजमा? हाँ जी, या ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम श्री ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री गुरुजी ऋषि प्रभाकराय नमः। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।